Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our fourth chapter, distribution of ocean and continent. And our today's topic is distribution of earthquakes and volcanoes. Students, in our earlier chapter, in chapter number 3, we already discussed about the evolution, the reason behind the earthquake and the volcano. It means in very descriptive form, we already know that what is earthquake, what are the activity happen in volcanoes and all that. So in this topic, we are just only discuss about the distribution of earthquake and volcanoes, where earthquake and volcanoes happen on the earth. So study of the map showing the distribution of seismic activity and volcano given in the figure 4.2. Let us discuss firstly this figure. Here, the figure 4.2 explain the distribution system of earthquake and volcano in the entire area. See, this four shaded pattern, the square, the lighter dot, the darker dot and the bigger dot. It shows the different things, different pattern. The square shape shows deep earthquake zones. So where this kind of situation mentioned, it is quite explain about the earthquake zone. The shallow earthquake centers are this chain series, this lighted dot. These are the area of shallow earthquake centers, right? The darker dot, like this shows the volcanic activity, volcanic eruption areas. See, this entire, this one. A chain is built. This entire area, here also. And the bigger dot are explain the hotspot regions. Hotspot, those areas where the severe earthquake and volcanic activities happen. So hope you understand this figure well. ये पूरा का पूरा मैप हमें डिफरेंट तरीके के सिस्टम को लोकेट कर रहा है. यहाँ पर ये डिफरेंशिएटिव पैटर्न है जो हमें शो कर रहे हैं कि कहाँ पर शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, कहाँ पर डीप अर्थक्वेक सेंटर्स है, कहाँ वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है और कौन सा एरिया हॉटस्पॉट जोन है, राइट? तो स्टूडेंट्स, you will notice a line of dot in the central part of Atlantic Ocean, and these lines almost parallel to the coastline. It further extends into the Indian Ocean. It bifurcates a little south of the Indian subcontinent, with one branch moving into East Africa and the other meeting a similar line from Myanmar to New Guinea. See, line of dot. Let's move to the map again. ये देखिए, ये जो line of dots हैं, ये वाले बिल्कुल एक चेन में है, राइट? पूरी की पूरी लाइन एक चेन बनाती है. हम लोग चाहे इस वाली लाइन की बात कर रहे हो, शैलो अर्थक्वेक जोन की, या फिर हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन जोन की, ये पूरा एक चेन ऑफ सीरीज यहाँ पर शो करता है, राइट? So the shaded belt showing another area of concentration coincide with the alpine Himalaya system and the rim of the Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-Atlantic ridges, oceanic ridges are at shallow depth, whereas along the alpine Himalayas belt, as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep-seated ones. क्या शो कर रहा है? जहां पर हल्की लाइनें, हल्के डॉट वाली लाइनें हैं, ये शो कर रही है शैलो बेल्ट, जो कि अल्पाइन हिमालय से लेकर के रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन तक जाता है, और मिड ओशनिक रिजेस वाला जो इलाका है वहां पर काफी डीप सीटेड वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं. तो द रिम ऑफ पैसिफिक इज आल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर. ये वाला हिस्सा देखो रिम ऑफ फायर कहलाता है, ये एंटायर एरिया, क्योंकि अगर इसमें देखें तो ये चारों तरफ वोल्केनिक इरप्शन है, चारों तरफ, और इस पूरे एंटायर एरिया को क्या कहा जाता है? रिम ऑफ फायर, और मे बी इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर. सर्कुलेटेड एरिया है
जो चारों तरफ से ऐसे लगता है कि एक आग की रिंग जल रही है। वॉल्केनिक इरप्शन कुछ इस तरीके का होता है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ earthquake and volcanic eruption over the surface of the earth. Now let me discuss about the concept of sea floor spreading. Students, जैसा हमने पहले की थ्योरी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या देखा था कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जिनका ये मानना है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन जो हमारा सी फ्लोर है उसमें जरूर स्प्रेडिंग, उसमें जरूर फैलाव हो रहा है। Let us examine what they said. Students, in the drift theory, at the time of Wagner put forth this concept of continental drift in the year 1912, particularly the mapping of ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions revealed the following facts as well. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से और धीरे धीरे जब हमने मैपिंग शुरू की किसकी, ओशियन फ्लोर की, कि ओशन का फ्लोर किस तरीके का है, और जब हमने पेलियोमैग्नेटिक स्टडी की इसका, रॉक्स का, तो कुछ फैक्ट्स रिवील हुए हैं। और ये फैक्ट्स क्या हैं? इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अमंग द मिड ओशनिक रिजेस volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area. सबसे पहली बात ये रियलाइज की गई जब ओशन फ्लोर का स्टडी किया गया कि जो ओशनिक रिजेस हैं, ओशियन में जो माउंटेन रिजेस हैं, दे आर हैविंग द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा स्प्रेडेड इन द सरफेस ऑफ द सी फ्लोर। पहली बात। दूसरा, द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, रॉक्स जो हैं इक्विडिस्टेंटली दोनों साइड में क्रेस्ट के फैले हुए हैं मिड ओशनिक रिजेस के, एंड इट शोस रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज वेल। एक तो ये बिल्कुल बराबरी में इक्विडिस्टेंट तरीके से स्प्रेडेड है, और दूसरा इनके अंदर बहुत सारी रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हैं, और वो सिमिलैरिटीज हैं इनमें फॉर्मेशन पीरियड में, केमिकल कंपोजिशन में, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, यानी कि ये भी सिमिलर है। तो रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट। जो मिड ओशनिक रिजेस के आसपास के रॉक्स हैं ये यंगेस्ट हैं, एंड द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। और इनकी एज जैसे जैसे हम लोग इन क्रेस्ट से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जो रॉक्स की एज है उनमें भी डिफ्रेंसिएशन नोटिस होते हैं। जो जितना पास है रिजेस के वो उतना ही यंगर है, और जैसे जैसे दूर होता जाता है वो ओल्डर होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो नियर बाय जो रॉक्स फॉर्मेशन बनते हैं वो बिल्कुल पास में बनते हैं, तो वो न्यू होते हैं, और जैसे जैसे ये फैल करके आगे बढ़ते हैं ये धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं। सिंपल। नाउ थर्ड फैक्ट, द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। माना जाता है ओशियन की जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले इन दोनों में रॉक्स में ओशियन वाला क्रस्ट रॉक यंगर है। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियन क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 million, whereas some of the continental rock formation is happened as old as 3200 million years. कॉन्टिनेंटल रॉक्स का जब हम लोग डेटिंग पता करते हैं तो ये 3200 मिलियन साल पहले की है, वहीं ओशनिक क्रस्ट की रॉक्स का जो एज है वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स पहले का है। तो हुआ ना न्यू। नाउ फिफ्थ फैक्ट, द सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर are unexpectedly very thin. Scientists were expecting if the ocean floor were as old as continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration, right? Sedimentation जो है वो ओशन फ्लोर पर काफी पतला है, और साइंटिस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों एक ही समय में बने हैं तो इनका भी थिकनेस बराबर होना चाहिए, ये इतने पतले क्यों हैं? तो जब स्टडी की गई तो क्या सामने आया, क्या रिवील हुआ? द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन ओनली 200 मिलियन ईयर्स।
जो कि काफी न्यू एज है। एंड फिफ्थ फैक्ट, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस। जो गहरी घाटियां हैं समुद्र की, वो अर्थक्वेक अकरेंस की वजह से हुई हैं। तो द मिड ओशनिक रिजेस एरिया हैविंग द ग्रेट डीपेस्ट ट्रेंचेस एंड द क्वेक फॉसी हैव शैलो डेप्थ। और क्वेक का जो एरिया है, क्वेक का जो फॉसी एरिया है, इनकी डेप्थ क्या है, शैलो है। यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक शैलो डेप्थ पर ही आते हैं और इनकी वजह से रिजेस जो है, ट्रेंचेस जो हैं, ये और गहरे हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता है अटलांटिक ओशियन का जो रिज है, मेरियाना ट्रेंच वाला एरिया जो है वो काफी गहरा है। So these facts and a detailed analysis of magnetic properties of the wrecks on either sides of the mid-oceanic ridges led Hess 1961 to propose his hypothesis, and this hypothesis known as the sea floor spreading. ये सारे फैक्ट्स को जब डिटेल एनालाइज किया गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिटेल एनालाइज किया गया रॉक्स के, तो ये जो आइदर साइड है मिड ओशनिक रिजेस के, इन सब ने हैरी हेस जो है उनको अपनी थ्योरी प्रपोज करने में मदद की और उन्होंने फिर एक थ्योरी बनाई और उसको नाम दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। तो ये हैस आर्ग्यूड दैट constant eruption at the crest of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust। ये जो कांस्टेंट eruption हो रहा है वोल्केनो का ओशनिक रिजेस के क्रेस्ट पर, इसकी वजह से पूरा ओशनिक क्रस्ट जो है उसमें नए लावा वेजेस इंक्रीज हुए जा रहे हैं एंड इट पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड। और इस लावा डिपोजिशन के कारण ये जो भी एरिया है कॉन्टिनेंट का और ये जो सी है, ये और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये दोनों साइड में स्प्रेडिंग कर रहा है। तो द यंगर एज ओशनिक क्रस्ट as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made Hess think about the consumption of oceanic crust. So he further maintained that the ocean floor that gets pushed due to the volcanic eruption at the crest sinks down at the oceanic trenches and gets consumed. आगे इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि लावा पूरे में फैल रहा है और बहुत तेजी से धक्का मार रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रेंचेस हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में लावा उनमें भी जाकर के भर जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए जो सागर का फैलाव है वो धीमी धीमी गति से होता है और ये कहीं ना कहीं फैक्ट आजकल माना भी जा रहा है कि अटलांटिक ओशियन जो है उसका सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। और यहाँ दोनों थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कह रही है कि लैंड एरिया एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्प्रेडिंग थ्योरी क्या कह रही है कि सागर का जो बॉटम एरिया है, नितल एरिया है, वो ही फैल रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अर्लियर टाइम पर ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, स्प्रेड हुआ, पार्ट्स में डिवाइड हुआ और धीरे धीरे ये फ्लो हो गया, मूव हो गया, राइट। चलिए इन दोनों थ्योरीज को और अच्छे से समझेंगे अपनी थर्ड थ्योरी के सपोर्ट से। और वो थर्ड थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कई बार सुनी होगी, एक बार और देखते हैं। तो since the advent of the concept of sea floor spreading, the interest in the problem of distribution of ocean and continent was revived। अब जैसे जैसे एक नया आइडिया आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, तो उसने इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट और बढ़ा दिया कि आखिर ये ओशियन और कॉन्टिनेंट्स जो हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। और इस बार कुछ नए स्कॉलर्स ने एक नए आइडियाज अपने दिए एंड इट वाज द टाइम 1967 व्हेन मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन रिवील्ड देयर आइडियाज एंड दे इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विद अनदर। इन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज जनरेट किए और अपने अपने आइडियाज को अपने अपने तरीके से एस्टैब्लिश किया। तो concept term plate tectonic, a tectonic plate is also called the lithospheric plate, is a massive irregularly shaped slab of solid rock and it generally composed of both continental and oceanic lithosphere। प्लेट टेक्टोनिक जिसे हम शब्द कह रहे हैं,
ये लिथोस्फेरिक प्लेट है। ये एक मैसिव इरेगुलर शेप की स्लैब है, एक सॉलिड रॉक पार्ट है जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर के बना है। एंड प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज रिजिड यूनिट। एस्थेनोस्फीयर के बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है। एस्थेनोस्फीयर क्या है? 400 किलोमीटर वाला अबव एरिया मेंटल का, जो कि वीकर जोन कहलाता है, उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। यहाँ मैंने आपको एक बार और रिमाइंड करवाया है, ठीक है। इसी के ऊपर ये लिथोस्फीयर जो है वो मूव कर रहा है। तो द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल। लिथोस्फीयर में हम लोग क्रस्ट को और टॉप मेंटल वाले पार्ट को इंक्लूड करते हैं, और इसका रेंज, इसकी थिकनेस डिफरेंट है। इसकी थिकनेस की रेंज 5 से 100 किलोमीटर है ओशनिक एरियाज में, और 200 किलोमीटर तक मिल जाएगा आपको कॉन्टिनेंटल एरिया। यानी कि इस लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो ओशनिक एरियाज में थोड़ी कम है, और वो हमने पहले ही बात कर ली है कि ओशियन का जो फ्लोर है उसकी थिनर है पार्ट इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल एरिया। वहां का रॉक ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका फॉर्मेशन बहुत लंबे, बहुत पुराने समय से हुआ है, 3200 मिलियन ईयर्स, और ओशनिक फ्लोर कब से बनने शुरू हुए हैं? सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स। तो फिर ये सेडिमेंटल डिपोजिशन जो होता है उसकी थिकनेस डिफरेंट तो होगी ही, राइट। तो a plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which of the two occupy a larger portion. किसी भी प्लेट को हम ओशनिक प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट कब कहेंगे? इस अकॉर्डिंग कहेंगे कि कौन से एरिया को किसने ज्यादा ऑक्यूपाई किया है। अगर किसी प्लेट पर वाटर बॉडी ज्यादा है तो वो ओशनिक प्लेट कहलाएगी। अगर कोई प्लेट सॉलिड ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल एरिया ज्यादा कंज्यूम करता है, तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाएगी। सिंपल सी बात है। So the Earth theory of plate tectonic proposes that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, एक बात तो यहाँ क्लियर करती है कि हमारा पूरा एंटायर अर्थ जो है एट प्रेजेंट इट्स डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स, and young cold mountain ridges, trenches and or faults surrounded these major plates. इस प्लेट के सराउंडेड क्या क्या चीजें हैं? माउंटेन रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं, फॉल्ट्स हैं, ये सारी चीजें इसके सराउंडेड है। तो चलिए बात करते हैं वो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है। सबसे बड़ी प्लेट, सबसे पहली प्लेट, बड़ी तो नहीं पर हाँ इन द सेंस फर्स्ट प्लेट, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट इज द फर्स्ट वन। नॉर्थ अमेरिका with western Atlantic floor separated from the South America plate along the Caribbean island. This is the second plate. Third plate is South American plate with western Atlantic floor separated from the North American plate along the Caribbean island. यानी कि कैरिबियन आइलैंड के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला हिस्सा साउथ अमेरिका। फिर पैसिफिक प्लेट फोर्थ वन। फिफ्थ वन इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। ये इंटायरली एक ही प्लेट है जिस पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सिचुएटेड है। सिक्स्थ प्लेट अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, एंड सेवेंथ एंड द लास्ट मेजर प्लेट इज यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशन। एक्सेप्ट दीज 7 मेजर प्लेट्स वी आर आल्सो हैविंग सम ऑफ द माइनर प्लेट्स टू। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फेमस कोकोस प्लेट जो कि सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। नास्का प्लेट जो कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। अरेबियन प्लेट मोस्टली सऊदी अरेबिया लैंडमास जो है इसी अरेबियन प्लेट पर सिचुएटेड है। फिलिपाइन प्लेट ये एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच वाला हिस्सा है। देखिए यहाँ पर हम शो भी कर देते हैं, ये है पूरा पैसिफिक प्लेट, ठीक है। फोर्थ वन यहाँ से शुरू किया हमने, फर्स्ट वन, दिस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज सेकेंड वन, South American plate is third one, then Pacific plate entirely is fourth one, and this Indo-Australian plate जिस पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, this is fifth one, then here African plate sixth one, and last this one is Eurasian plate. These are the 7 major plate boundaries. और यहाँ देखो, यहाँ पर जहाँ सिंपल ये दो लाइनें हैं, इट शोज डाइवर्जेंट बाउंड्री,
जहां पर एक लाइन और उसके ऊपर इस तरीके का बना हुआ है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री शो कर रहा है। और यहाँ पे सिंगल लाइन है, इट शोज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या है भाई डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, डिस्कस किया है हमने। दिस इज द मूवमेंट, दिस इज द मार्जिन बाउंड्री ऑफ दीज ब्रॉड प्लेट्स, राइट। और इसी के साथ में छोटी छोटी वाली प्लेट्स, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, राइट, फिलिपाइन प्लेट and Arabian plate. These are some of the smaller minor plates, right? Here is Scotia plate, right? So this is the plate distribution of entire earth. Two smaller plate also given here. The Caroline plate, it's situated between the Philippine and Indian plate north of New Guinea, and Fuji plate, it's situated between the northeast of the Australia. So students, these plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. जब से अर्थ की हिस्ट्री शुरू हुई है तब से ही इन प्लेट्स का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। एंड इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव बाय वेगनर। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेट ओनली। वेगनर ने क्या दिया है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी द कॉन्टिनेंट्स आर नॉट ड्रिफ्टिंग, दीज प्लेट्स आर मूविंग। कॉन्टिनेंट्स इस प्लेट के हिस्से हैं और जैसे जैसे ये प्लेट मूव होती है कॉन्टिनेंट उसके साथ मूव होते हैं। तो पर्टिकुलरली कोई कॉन्टिनेंट अकेला मूव नहीं कर रहा है, ये तो वो प्लेट मूव कर रही है जिस पर कॉन्टिनेंट सिचुएटेड है। So moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and shall continue to move in the future as well. तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्लेट्स पास्ट में भी मूव कर रही थी और फ्यूचर में भी इनका मूवमेंट होगा और आज हम इनका मूवमेंट मानते भी हैं। So Wegener had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangaea. However, later discovery revealed that the continental masses resting on plates have been wandering all through the geological period, and Pangaea was a result of converging of different continental masses that were parts of one or the other plate. So scientists using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continent land masses in the different geological period, and the position of Indian subcontinent, mostly I am talking about peninsular of India, is traced with the help of rocks analyzed from the Nagpur area, right? तो हमने क्या देखा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जहां वेगनर एक तरफ कहते हैं कि कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्टिंग होता है, मूवमेंट होता है, बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंड बेटा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रिवील दैट फैक्ट कि प्लेट्स में मूवमेंट होता है एंड देयर आर थ्री काइंड ऑफ मूवमेंट नोटिसेबल: divergent boundary, convergent and transforms. So let me discuss about these plate boundaries. Divergent boundary कौन सी होती है? जब दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। सो वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे। और इसमें क्या होता है, जब दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करती हैं तो एक नया क्रस्ट जनरेट होता है। The sides where the plates move away from each other are called spreading sides. और जहां पर दो अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसको कहते हैं स्प्रेडिंग साइड्स, यानी कि यहाँ पे फैलाव हो रहा है। एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल इज डाइवर्जेंट बाउंड्री इन मिड अटलांटिक रीजन. So at this American plate are separated from Eurasian and African. ये इसका वेल नोन एग्जाम्पल भी है. Hope you understand. Now let's move to the second boundary, that is convergent boundary. इसमें क्या होता है, कन्वर्ज होती हैं बाउंड्री लाइंस जो है एक दूसरे के सिमिलर डायरेक्शन में मूव करती हैं. तो वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेस डिवाइड अंडर अनदर. इसमें क्या होता है, एक दूसरे की तरफ मूव करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये प्लेट जो है इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है. एंड द लोकेशन वेयर श्रिंकिंग ऑफ प्लेट अकर इज कॉल्ड सबडक्शन जोन. और जहां पर दो प्लेट बाउंड्री मिलती हैं, है ना, श्रिंक होती हैं, उसको सबडक्शन जोन कहते हैं. तो देयर आर थ्री वेज इन विच कन्वर्जन कैन अकर. तीन तरीके से कन्वर्जन हो सकता है.
बिटवीन ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, या फिर बिटवीन टू ओशनिक प्लेट, या फिर बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, इसमें दो प्लेट्स आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकती है। लास्ट है प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें कोई नया इवोल्यूशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये बाउंड्री साइड बाय साइड मूव करती है इस तरीके से। So where the crust is neither produced nor destroyed, as plates slide horizontally past each other, transform faults are the planes of separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. So as the eruption do not take all along the entire crest at the same time, there is a differential movement of a portion of a plate away the axis of the earth. So also the rotation of earth has its effect on the separated blocks on the plate portion. तो जब भी दो प्लेट बाउंड्री ऐसे साइड बाय साइड मूव होती है तो क्या होता है, जैसी जगह खाली होती है दूसरा अपना मूवमेंट कर लेती है प्लेट, और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस अकर नहीं होते हैं। इसमें ना तो कुछ बनता है ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, कन्वर्जन और डाइवर्जन। होप यू अंडरस्टैंड द प्लेट मूवमेंट एज वेल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट एंड देन लेटर वी डिस्कस द फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। रेट का पता कर लेते हैं कि कौन सी दर से मूवमेंट होता है, क्या सभी प्लेट्स एक ही गति से मूव हो रही हैं, एक ही स्पीड है इनकी, या इनमें स्पीड भी डिफरेंशिएटेड है। तो द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रिप जो है कई बार नॉर्मल होता है कई बार रिवर्स होता है, ये पैरेलल है मिड ओशनिक रिजेस के। तो इस सिस्टम ने साइंटिस्ट को काफी कुछ डिटरमाइन करने में मदद की है। और क्या डिटरमाइन किया है साइंटिस्ट ने, रेट्स डिटरमाइन किया है इस मूवमेंट का। तो दीज रेट्स वेरी कंसिडरेबली। द आर्कटिक रिज हैज द स्लोएस्ट रेट। आर्कटिक रिज वाली जो प्लेट है उसका काफी स्लो स्पीड है और ये लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये इतनी धीमी गति से मूव कर रही है। जबकि ईस्ट पैसिफिक राइज जो है ईस्टर आइलैंड की तरफ, साउथ पैसिफिक 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली, दिस प्लेट मूव्स वेरी फास्ट एंड इट्स मूव नियरली 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, हम लोग पैसिफिक ओशियन के आसपास के हिस्से वाली प्लेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ईस्ट पैसिफिक राइज है इसमें बहुत तेजी से मूवमेंट नोटिसेबल है। जहां आर्कटिक रिज वाली प्लेट जो है उसका रेट सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है, वहीं इसका कितना है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पर दिमाग में ये आएगा 15 सेंटीमीटर एक स्केल के बराबर का मूवमेंट, क्या फर्क पड़ता है? पर बेटा फर्क तो तब भी पड़ता है जब पूरा ग्लोब का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिमिलरली इतने बड़े अर्थ का जब ये मूवमेंट होता है तो ये भी मूवमेंट कुछ नया इवोल्यूट या कुछ बना हुआ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो होप यू अंडरस्टैंड एंटायर थिंग्स वेल। नाउ in my next video I am going to tell you about the forces by which these plates moves. हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो रीजंस क्या है, वो कौन से फोर्सेस हैं जो इतनी ह्यूज प्लेट को भी मूव कराने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।